Good morning, everyone. In the last class, we did talk about the straight line and the equations of the lines we are discussing for past few more days. Uh, Now I'm going to introduce another very important form of a line, and that is referred to as the intercept form of a line. Intercept form of a line. The basic idea goes like this: coordinate axis. There is any line. For a sake of simplicity, we are taking in first quadrant. Hardly matter second or third or fourth कैसी भी जा रही है. लाइन में अगर ये पॉइंट दिया A0, क्या मतलब ये डिस्टेंस कितना है A यूनिट्स एंड दिस डिस्टेंस इज से B यूनिट. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, B. We say this line has made A units as its x-intercept and B unit as its y-intercept. And the equation of this line is given by x by A plus y by B is equal to 1. You can easily prove this formula. ये दोनों पॉइंट मुझे मिल गए इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट फॉर्म से y minus y1 is slope into x minus x1. वो लगाएंगे रीअरेंज करेंगे you will get this formula. So basic idea start with just learn this formula. With this understanding, a क्या है x यूनिट और x एक्सिस के ऊपर जो लेंथ कट हुई है और b हो गया y. इसी तरह से अगर मान लो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी तो फर्क क्या पड़ता है, यहाँ b की जगह डिस्टेंस तो b ही है बट यहाँ -0, -b हो जाता तो यहाँ -b आ जाएगा अकॉर्डिंगली. Rest idea remains the same. To begin with a very simple question, find equation of a line. General question यही होंगे, find equation of a line making intercept 2 and -3 on x and y axis respectively. What will be the equation of the line? x by a हो गया ये प्लस y by b and that is 1. a और b आपको गिवन है. But answer is form में नहीं बोलना है. Take the LCM and simplify. 3x minus 2y equal to 6. Yes. So basic idea आपने ये देखो ये प्लस माइनस ये माइनस हो गया. LCM लिया 6 आ गया. 3x minus 2y and this is 1. 3x minus 2y is equal to 6. या minus 6 is 0. The required answer. Another similar question. Find intercepts. Find intercepts cut off by line 2x minus y plus 16 equal to 0 on coordinate axis. Means x intercept कितना है और y intercept कितना है. Remember जैसे ही हमने बात करी है intercept की, express this in the intercept form. RHS 1 है, ये ध्यान रखो फॉर्मूला जो बनने वाला है. So how I am going to start? ये आ गया -16 throughout -16 से डिवाइड, dividing by -16 both the sides. वहाँ मेरा फोकस RHS should be 1. क्या हो जाएगा ये 2x upon -16 minus y upon -16 is 1 और x upon minus it minus minus plus हो गया and this is equal to 1. What is the answer? X
इंटरसेप्ट आप बता देंगे वो कितना बनाया, -8, -8, और y इंटरसेप्ट बन गया 16. 16। और आइडिया लग जाता है कि ये लाइन बेसिकली -8, 0 एंड 0, 16 से पास हो रही होगी। Now check out very important type of question. Find equation of line passing through 3, 4 and whose sum of intercepts on axis is 14. So what's the basic idea? The key word for me is intercepts की term में बात करी गई है. So how I'm going to start this question? Let required equation be x by a plus y by b is equal to 1. Two conditions are given. First, passing through 3, 4. 3, 4 lie on it. तो क्या हो जाएगा? x की जगह 3, y की जगह 4 रख दीजिए. What about the second condition? क्या गिवन है आपको? a plus b equal to 14. Yes, sum of intercepts. तो a and b intercept है, और also आपको simple given है a plus b is 14. How we are going to solve these two equations in two variables? यहाँ से b कितना आ गया? 14 माइनस है. b की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में. फ्रॉम 1 and 2 कंसेप्ट जो था स्ट्रेट लाइन का वो खत्म. अब ये आपकी 10th क्लास की इक्वेशन देखिए कैसे बन रही है. b की जगह रख दिया 14 माइनस एक बार एलसीएम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. क्विक चेक करते हैं. a into 14 minus a, 42 minus 3a and then plus 4. This is equal to 1. तो 42 प्लस a ये बच गया यहाँ पर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए a into 14 माइनस a. 14a minus a square, rearrange a square, ये इधर आकर minus 13a plus 42 is 0. Yes, sir. क्वाड्रेटिक फार्मूला या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कितना स्प्लिटिंग कोई बता सकता है क्या आ रहा है? 6 and 7. First two, last two combine, और this gives me a as 6 or 7. दो केसेस बन गए. केस 1, केस 2 दोनों करके दिखाने हैं. केस 1 when a is 6, यहां रख दो. b कितना आ गया? 8. तो इक्वेशन क्या हो गई लाइन की?
x by a plus y by b is 1. Take the LCM and simplify. इसी तरह से solve case 2 when a is 7. वेरी सिमिलर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. Consider this question. All of you in the online class, please mark your attendance. If M T comma B is midpoint of line segment intersected between axes, show that equation of the line is x by a plus y by b equal to 2. एनसीईआरटी का ही है. सबसे पहली बार इंटरसेप्ट की बात हुई है, बट ऑलरेडी यहाँ ए ही कुछ अलग पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म क्या मानने वाला हूँ? द लाइन इज से एक्स बाय अल्फा प्लस वाई बाय बीटा इज 1. अब मैं ए और बी लिख सकता हूँ. अब इस लाइन के बारे में सोचिए कैसी लाइन है. ये कुछ ऐसे गई होगी. ये क्या हो गया? अल्फा कॉमा 0 और ये पॉइंट हो गया 0 कॉमा बीटा. दिस इज ए, दिस इज बी. क्या गिवन है? M जो है वो इसका मिड पॉइंट है. लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टेड बिटवीन द एक्सिस. तो वो लाइन सेगमेंट कौन सा हो गया? फिक्स लेंथ AB है. इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है A कॉमा. मिड पॉइंट फार्मूला लगा लो 10th क्लास. यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला अल्फा प्लस 0 बाय 2 कॉमा 0 प्लस बीटा बाय 2. ये मिड पॉइंट हो गया और वो कितना है? एक्चुअली a कॉमा b. रिमेंबर मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 बाय 2. सिंपल. कंपेयर करो. अल्फा आ गया 2a, बीटा आ गया 2b. अल्फा एंड बीटा की वैल्यू इक्वेशन हमने मानी थी ना. रिप्लेस तो कितना आ जाएगा? x बाय 2a प्लस y बाय 2b इज इक्वल टू 1. 2 यहां से RHS में हेंस 2. तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली एमसीक्यू में कन्वर्ट हो रहे हैं. भाई कंडीशन दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिक्वायर्ड लाइन. तो बस x y प्लस y by b 1 दे दिया, 2 दे दिया, 1 by 2 माइनस कर दिया बीच में. व्हाटएवर दिस कैन बी डन. सॉल्व तो करना ही रहेगा इवन इफ इट इज एमसीक्यू. Consider this one more question based on this subtopic. ये अब एनसीईआरटी मिसलेनियस में बात करवा लो. चून मना भाई ये तो एक भागा जा मेरा पापा. find the equation of a line from perpendicular to x by 4
प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये कोई भी लाइन जा रही है, इसके ऊपर ये लाइन ड्रॉ करी गई है और साथ में क्या कहा है, थ्रू द पॉइंट वेयर इट कट्स द वाई एक्सिस। अब इसे समझने के लिए रफ स्केच से ना प्रॉपर आइडिया नहीं लगेगा, तो व्हाट आई विल डू, ये लाइन आप इजीली सोच सकते हैं कैसी जा रही होगी। इसमें पासिंग थ्रू 4 0 एंड 0,6 ये लाइन है। अब एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रीड आउट करता हूं, क्या कहते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन drawn perpendicular to this line through the point where it meets the y-axis। y-axis पे यहाँ मीट कर रही है, इसके ऊपर जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, आपको इसकी इक्वेशन पूछी। सर एक पॉइंट तुम्हें पता ही है और फिर उसको हम पुट कर देंगे, स्लोप निकाल लेंगे। yes of course आइडिया, अगर डायग्राम अगर आपने समझ लिया उसके बाद तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये ए बी हो गया, आप इस पे कहीं पर भी एक पॉइंट सी लिख देता हूं। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ बीसी। स्लोप ऑफ ए बी कितना है, y2 minus y1 upon x2 minus x1 minus 3/2। इससे व्हाट इज स्लोप ऑफ BC, परपेंडिकुलर है 2/3 और BC की इक्वेशन निकाल रहे हैं जिसके ऊपर पॉइंट मुझे पता है। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज सिंपली y minus y1 is m into x minus x। Simplify your answer। सही कितने मार्क्स से क्वेश्चन था? This is आपके MCQ में है तो सिंपल assume 1 मार्क पर होंगे। ओके सर। अभी तो 40 MCQ but 90 minutes will be given। तो 1.5 घंटा जो दिया जा रहा है ओनली फॉर 40 MCQ। क्वेश्चन चाहे कहने को 1 मार्कर होगा अगर आपका MCQ, कुछ तो डायरेक्ट देखते ही सॉल्व होंगे स्टार्टिंग वाले पॉसिबली, बट बाद में रहेगा जो आपके पास डिफिकल्टी आने वाले, बट इजी हो या थोड़ा डिफिकल्ट हो, 2 स्टेप में हो रहा है या 5 स्टेप में, वेटेज सबका इक्वल होगा एज पर CBSE। तो हम उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं 11। आपसे असाइनमेंट बुकलेट के बारे में क्लास टीचर ने कोई बात करी है आपसे फॉर टर्म 1? नो सर। चलिए चेक दिस आउट। नेक्स्ट टर्म हम बात करने वाले हैं, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ अ लाइन एंड इट्स द लास्ट फॉर्म ऑफ द लाइन की जो हम बात करेंगे, एंड आई थिंक द सेकंड और थर्ड लास्ट सब टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। Equation of line in the normal form। Check this out। Coordinate axis कैसी भी लाइन जा रही है, we are interested in the equation of this line। केवल 2 चीजें, क्या क्या, ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना थीटा। एनसीईआरटी में W ओमेगा लिखा है बट वी जनरली प्रेफर थीटा ओनली। और इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो p यूनिट्स, तो a जो डिस्टेंस है वो भी मुझे पता है। 2 चीजें गिवन, थीटा एंड p। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज
x cos theta plus y sin theta is equal to p. Again, without any proof. ये तो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम दिखाया है. You can check it out in NCERT textbook. चारों क्वाड्रेंट में अगर मान लो लाइन ऐसे की जगह ये फर्स्ट से जा रही थी, मैं ऐसे भी अगर दिखा दे, कोई हार्डली मैटर. क्या क्या गिवन है, यहां से जब ये परपेंडिकुलर आया, ये लेंथ p है और थीटा एंगल कौन सा होगा, x एक्सिस के साथ जो ये पूरा एंगल बना है पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट होते हुए, तो यहां से यहां तक जो पूरा एंगल है वो थीटा है. The equation will be still the same. Hardly matter third quadrant हो, fourth quadrant हो. In all four cases, the answer, the equation का formula still remains the same. Please make a note of this form to formula. Third and fourth quadrant NCERT में ही चेक कर लेना. Check this out. इधर है मां. Question है. Find the equation of a line. और statement को सुनिए. I am not writing the complete statement. Find the equation of a line whose perpendicular distance from the origin is √8 units. तो इतना सा जैसे मैंने पढ़ा, √8 यूनिट origin से distance दिया है. मतलब p is equal to √8. √8 and the angle between positive direction of x-axis and the perpendicular is 135 degrees. So I think Theta 135. कुछ लाइन ऐसे जा रही है, ये एंगल बना होगा रफली 135 डिग्री. ठीक है, बट आपके पास क्या कहा है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लाइन इज नॉट पासिंग टू द ओरिजिन, अदरवाइज तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं होगा ना. तो इसलिए डायग्राम कैसा जाएगा ये सोचिएगा ध्यान से. इसके पैरेलल कोई लाइन जा रही होगी, से दिस लाइन, इसने भी तो ये 135 ही बनाया है, और ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है तो ये आपको roughly 2.8 या जो भी लेंथ आएगी. तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, x cos theta plus y sin theta is equal to p. p. So this is not the complete solution. हम already सीख चुके हैं how to find these values. तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तभी आप ये दोनों वैल्यूज को लिख पाएंगे. तो 180 minus 45 degrees. सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है, तो ये -1/√2 आ जाएगी, ये +1/√2 आ जाएगा. सब्स्टिट्यूट कर वैल्यू, रीअरेंज योर आंसर. Praveen, you have any doubt? सर पूरे ना. If not, then please be on mute mode. Next question भी इसी तरह से सिंपल दिया हुआ है. And based on this NCERT exercise 10.2 स्टार्ट हो जाती है, और उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है, because I already have taken the questions, most of the questions from the this only exercise 10.2. तो first 10 questions तो बिल्कुल straight forward गए थे, that you can easily check out in your homework. First 10 तो बिल्कुल straight forward है. इसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म क्वेश्चन सुनिए आप सिर्फ.
Find the equation of a line passing through 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9. I hope the idea is clear. अभी 14 वाला मैंने Yes, करवा sir. दिया, बिल्कुल वही केस है। इसी तरह से एक ये क्वेश्चन चलिए सुन लीजिए। ये 14 क्वेश्चन है। Find the equation of a line through the point 0, 2. 0, 2 यानी यहाँ आ जाएगा पॉइंट। Equation of a line through 0, 2 making the angle 2 pi by 3 with positive x-axis. 2 pi by 3 कितना हो गया? 120 डिग्री। तो पॉजिटिव x-axis के साथ मतलब ये एंगल आपको गिवन है 120 डिग्री। पॉइंट स्लोप फॉर्म डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा y minus y1 is m into x minus x1। फर्दर ये बहुत सिंपल थे 18, 19। तो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर होमवर्क। ऑल दी क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं सारे क्वेश्चंस। प्रीवियस स्लाइड्स को जब आप चेक करेंगे पास्ट 2 क्लासेस की, एवरीथिंग इज ऑलरेडी बीइंग डिस्कस्ड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अबाउट जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एवरीवन नोस ax Yes, sir. plus Plus by plus c equal to 0. plus c is equal to 0। अब किसी लाइन की फॉर्म को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इंटर कन्वर्जेंस आर इंपॉर्टेंट। क्या मैंने कहा? ये लाइन है, इसे एक्सप्रेस करो इन स्लोप y is equal to mx plus c। यस। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सुनते ही माइंड में क्या आ गया? y इक्वल mx प्लस c। अब ये टर्मिनोलॉजी के साथ याद होना चाहिए। तो बेसिक आइडिया आपने 6th में पढ़ा हुआ है, आप चेक करो इक्वेशन ये दी हुई है। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं पर्टिकुलर की जगह जनरल की जगह पर्टिकुलर केस ले लेता हूं। मान लो क्वेश्चन है 2x minus 3y plus 6 is equal to 0। ये इक्वेशन है, इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताना है। तो क्या करेंगे? मुझे y चाहिए, 3y किसके इक्वल आ गया? 2x plus 6 और y will be 2 by 3x plus 2। Yes, sir. हो गया एक्सप्रेस। और इस केस में अब आप इजीली चेक कर सकते हैं क्या हो जाएगा। आपको जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा गया है तो यू नीड टू गिव द वैल्यू ऑफ m एंड c। m हो गया 2 by 3, 2 by 3 c is equal to 2. स्लोप भी पता चल गया। और स्लोप वैसे भी आप चेक कर सकते थे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। to discuss this formula 2 by 3 हो गया मैच। वैसे सेम क्वेश्चन अब मान लीजिए आपको एक्सप्रेस करना है इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब x by a plus y by b is 1। Yes, sir. तो बस RHS 1 होना चाहिए। क्या हो गया? 2x minus 3y is -6। -6 से डिवाइड कर दिया। अभी किया है हमने बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। एंड x upon -3 plus y by 2 is equal to required equation। इसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा नॉर्मल फॉर्म में इसे लेकर।
check this out. How are you going to bring this in the normal form? तो उसके लिए क्या होती है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 3। वहां उस केस में ना आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे कि यहाँ तो डालने ही नहीं, जो मैंने रैंडम क्वेश्चन ले लिया था। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसकी जगह। मान लीजिए और कोई क्वेश्चन आपको दी हुई है x minus root 3 is equal to 2, x minus root 3y is equal to 2। इसे एक्सप्रेस करना है नॉर्मल फॉर्म, राइट? तो इसे नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्या करिए? रूल गोज लाइक दिस, डिवाइड कर दो रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। आई विल गिव द रीजन व्हाई। कितना आ जाएगा? टू आ गया। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो। x by 2 minus root 3 by 2 into y will be 2 से डिवाइड करें 1। तो कंपेयर करता हूँ विद x cos थीटा। सही है, बता रहे What is cos theta? 1 by 2। What is sin theta? Minus root 3 by 2। कंपेयर करो y का कोएफिशिएंट और b कितना आ गया? वो तो 1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को सिंपली 1 मिल चुका है। अब बच गया थीटा निकालना। उसे देखकर लगा था कि थीटा से 60 डिग्री, और ये मत भूलो साइन नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सिंपलेस्ट वे इज cos पॉजिटिव कहां होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ। नेगेटिव कहां होता है? थर्ड एंड फोर्थ। साइन नेगेटिव क्या है? कॉमन सिग्नल थीटा कहां लगेगा? मस्ट बी इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सोचो या ये सोचो, अब आपकी चॉइस है। अब इतना क्लियर हो गया तो आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट को सोचने के लिए यस आप लॉजिकल लगाइए। हाफ कब हो जाएगा? 5/3। फोर्थ में आने का मतलब क्या होता है? तो याद है फॉर्मूला 2 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। कितना आ गया? 5/3। इसे देखकर फाइनली थीटा कितना आ गया? 5/3। आंसर क्या हो गया? x cos थीटा plus y sin theta is equal to 1. This is your final required answer. Please make a note of it. Very important concept. एक्सपेक्ट करेंगे कि बिल्कुल इस तरह की फॉर्म में बेस क्वेश्चन आने वाला है। एवरीवन प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क के लिए आ रहा है, या आप अभी ट्राई कीजिए। √3x + y + 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में लाना इंपॉर्टेंट है।
नॉर्मल फॉर्म में सोचिए। Do remember one thing, नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए एक हिंट एक साथ दे देता हूं, √3x plus y equal to क्या लिखेंगे? -2 RHS represent distance can not be negative, क्योंकि ये तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली p है ना, perpendicular distance has to be positive। पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करो, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अब इस इक्वेशन को रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड एंड फॉलो द सेम अप्रोच। Everyone in the online class, please mark your attendance. And any doubt to anyone, please do let me know. No doubt, sir. Thank you, sir. Have a good day, sir. Yes, thank you. After this, we left with only one subtopic: distance formula. Distance of a point from a line and the distance between parallel lines, followed by a few miscellaneous questions. Yes, you can leave the class. In online, आपको नहीं कर।